جتنا آپ بچوں کی زندگی میں انوالو ہوں گے اتنا ہی بچے جو ہے وہ کلام میں گرو اپ ہوں گے. کہ اگر تم میری حکموں کی پیروی نہ کرے گا اور تیری آنکھوں کے سامنے تیرے بچے غیر قوموں کے حوالے کیے جائیں گے. خداوند یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے، جو نہ خون سے، نہ گوشت سے، نہ آدمی کی خواہش سے، اور بلکہ پاک روح کی قدرت سے اس دنیا میں آیا. بائبل کہہ رہی ہے کہ یسوع مسیح خدا کا حقیقی نور ہے. بچوں کو بتانا چاہیے کہ ابن آدم کھوئے ہوا کو ڈھونڈنے کے لیے آیا اور انہیں نجات دینے کے لیے آیا. میں پاسٹر فوزیہ غوری، حقیقی نور میں پروگرام حقیقی نور کے ساتھ آپ کے ساتھ. The Lord has spoken Psalm 119 کہ لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس جی خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں جو سلامتی سے ہم بابرکت پرفضل جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. ایک دفعہ پھر سے کلام کی خدمت لے کر جو ہے میں آپ لوگوں کے درمیان میں آئی ہوں. ہیپی کرسمس سیزن آپ کو بہت بہت مبارک ہے ہو، اور اسی طرح خداوند آپ کو جو ہے بہت ساری خوشیوں سے مالا مال کرتا رہے. آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے کرسمس سیزنز کی اور بچوں کی تربیت کی جو سیریز چلا رکھی ہے، آج اس کا 4th ایپیسوڈ ہے. اور اس ایپیسوڈ میں میں پھر آپ کو بتاؤں گی کہ ہمیں کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے کہ وہ غیر قوموں کی طرف راغب نہ ہوں اور غیر قوموں کی طرف نہ جائیں. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر تم میری حکموں کی پیروی نہ کرے گا اور تیری آنکھوں کے سامنے تیرے بچے غیر قوموں کے حوالے کیے جائیں گے. آج ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، انہیں بتانا ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنی جو زندگی کا ٹریک ہے اس پہ چلنا ہے. سسٹر اینڈ بردرز، جتنا ہم ان کی زندگی میں انوالو ہوں گے، جتنا ہم انہیں بتائیں گے، سمجھائیں گے، بچے اتنے ہی جو ہے خدا ان کے نام میں، خدا ان کی جلال میں گرون اپ ہوتے جائیں گے. سسٹر اینڈ بردرز، آپ سب جانتے ہیں حقیقی نور جو ہے وہ یسوع مسیح ہے، جو نور بن کر اس دنیا میں آیا اور جس نے اپنے نور سے پوری دنیا کو روشن کیا. ہم کلام مقدس کی ایک آیت سے اس پروگرام کا آغاز کریں گے. یوحنا پہلا باب اور اس کی 4 آیت سے میں کلام مقدس کی تلاوت کروں گی. اس میں زندگی تھی اور زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. خداوند یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے، جو نہ خون سے، نہ گوشت سے، نہ آدمی کی خواہش سے، اور بلکہ پاک روح کی قدرت سے اس دنیا میں آیا، اور اس نے آ کر خداوند کے پاک نام کو جلال دیا. اور سب سے بڑا اس نے کام جو کیا وہ یہ تھا کہ اس نے خدا باپ کی محبت کو اس دنیا میں ظاہر کیا، اور اس کی محبت نور کی مانند آج پوری دنیا میں روشن ہے. اور جتنی بھی ہم دیکھتے ہیں آسمان اور زمین پیدا ہوئے وہ فقط اس کے کلام سے ہوئے. وہ بنائے عالم سے پیشتر بھی خدا کے ساتھ تھا. ہم دیکھتے ہیں پیدائش پہلا باب، اور وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاک روح کی جنبش، پاک روح کا سایہ، خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ساتھ ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب زمین میں گہراؤ تھا اور چاروں طرف اندھیرا تھا اور خدا کے بیٹے نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی.
इसका मतलब है कि बाइबल भी चीख चीख कर कह रही है कि यीशु मसीह खुदा का हकीकी नूर है। हम मत्ती की इंजील में आते हैं, वहाँ भी जिक्र है, और लूका की इंजील में भी जिक्र है कि जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो आसमान से फरिश्तों ने उतर कर गीत गाया और हम्द की, और चारों तरफ अंधेरे में रोशनी हो गई। खुदा का बेटा यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आया ताकि इब्लीस के कामों को जो है मिटा सके। आज हमें ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को खुदावंद के बारे में बताएं, उसके कलाम के बारे में बताएं। आप खूबी वाकिफ़ है, क्रिसमस सीजन चल रहा है, हमें बच्चों को बताना चाहिए कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया और उन्हें नजात देने के लिए आया। मैं बार बार फिर आपसे कहूंगी कि जितना आप बच्चों की जिंदगी में इन्वॉल्व होंगे उतना ही बच्चे जो है वो कलाम में ग्रो अप होंगे, बढ़ते चले जाएंगे और खुदावंद के पाक नाम को जलाल मिलता जाएगा। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं जिस इलाका में जाती हूँ वहाँ पर मेरा फोकस जो है वो यंगस्टर्स होते हैं, न्यू जनरेशन होती है, कमिंग जनरेशन, और मेरा फोकस वही बच्चे होते हैं ताकि हमारे बच्चे अपनी राह से कभी ना मुड़े और कभी भी कन्वर्जन की तरफ ना जाएं। मैं उन्हें फोकस करके उन्हें खुदा के पाक कलाम को सिखाती हूँ, उन्हें बताती हूँ कि उन्होंने किस तरह कलाम को पेश करना है, किस तरह खुदावंद को प्रमोट करना है। और अभी आपको हम दिखाते हैं, कोऑर्डिनेशन दिखाएगी कि किस तरह जिस इलाका में मैंने 3 साल खिदमत की, अब वहाँ से बहुत सारी बच्चियाँ जो हैं वो कलाम के लिए तैयार हैं और वो कलाम देती हैं, प्रिजाइडिंग कराती हैं और बड़ा ऊंचे दर्जे पर अपने खुदा के नाम को जलाल दे रही हैं। मेरी तमाम खादमों से खुदाम से ये रिक्वेस्ट है कि वो जगह पर जगह जाए जैसे हमारे यीशु मसीह जाते थे और कलाम की रोशनी फैलाएं, क्योंकि जहाँ पर कलाम की रोशनी कम होती है वहाँ पर इब्लीस को काम करने का मौका मिल जाता है। और हमें ये मौका इब्लीस को नहीं देना और हमें सारा का सारा जलाल खुदा के बेटे यीशु मसीह को देना है, क्योंकि कलाम मुजस्सम हुआ और मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया। ये सारी चीज़ें हमें बार बार जो है न्यू जनरेशन को, बच्चों को बतानी है। मेरी खिदमत बहुत ज़्यादा है और जगह ब जगह मैं जाती हूँ, जैसे कि आप देखते हैं मोस्टली ब्रिकलैंड्स या नियर टू इंडोपॉक बॉर्डर्स पर होती हूँ, तो वहाँ पर हम जाकर कलाम की खिदमत करते हैं। और रिसेंटली जो मेरा 1 दिसंबर का मेगा प्रोग्राम था जिसमें 3000 लोगों ने शिरकत की, और वहाँ पर मैं खुदावंद के फजल से उसके जलाल के लिए वहाँ पर खुदावंद के पाकरू की मर्जी से मैंने कलाम शेयर किया कि हमें इस क्रिसमस पर सारे का सारा जलाल जो है वो खुदावंद को देना है। जैसे कि लास्ट एपिसोड में मैंने यसाया 42 और उसकी 8 वर्स में आपको बताया था कि यहोवा ने कहा था कि मैं ही यहोवा हूँ और सारे का सारा जलाल अब मुझे मिलना चाहिए। तो हमें इस क्रिसमस पर सारे का सारा जलाल खुदा के बेटे यीशु मसीह को देना है, जो दुनिया को छोड़कर हमारे दरमियान आ गया और वह ऐसे इंसानों के मुशाबा होकर उसने खुदा की खिदमत की, और जो हकदार है हमें उसी का हक देना है और उसी के नाम को जलाल देना है और उसी के नाम की सिताइश करना है। मैं एक बहुत खूबसूरत आयत आपके सामने कलाम मुकद्दस में तलावत करूंगी। मुकाशवा 21 बाब और उसकी 23 आयत में लिखा है, और उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं, क्योंकि खुदा के जलाल ने उससे रोशन कर रखा है, बरा उसका
चराग है। ये आसमानी शहर की बात हो रही है जो आसमानों पर कायम दायम है, और खुदा ने हमें बेटे और बेटियां होने का जो इज़्ज़त बख्शा, अपने फर्जंद होने का। ये उस शहर की बात हो रही है कि वहाँ पर सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं, क्योंकि खुदा के जलाल से वो सारा शहर रोशन है। जैसे कि हमने पैदाइश के पहले बाप में देखा कि ज़मीन के ऊपर गहराव था, अंधेरा था, और खुदावंद यीशु ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। फिर हम लूका की इंजील पर आते हैं कि जब उनकी पैदाइश हुई तो रोशनी हो गई चारों तरफ। अब हम मुकाशवा का जो वर्ष हमने पढ़ी है, और वहाँ पर भी लिखा है कि बरा उस शहर का चराग है, और चराग हमारा यीशु मसीह है जो इस पूरी दुनिया का भी चिराग है और आसमानों का भी चिराग है, और हमें पूरा का पूरा जलाल जो है वो खुदा के बेटे यीशु को देना है। जब मैंने उधर कलाम शुरू किया हांडू गुजरा में, तो बहुत ज़्यादा शोर था, लोग बैठ नहीं रहे थे, बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, मगर खुदा ने उस दिन कसरत से अपने नाम को और अपने बेटे को जलाल देना था। जैसे ही कलाम की खिदमत मैंने शुरू की, सिस्टर एंड ब्रदर्स, हर तरफ सन्नाटा छा गया, और वो लोग पौने घंटा तक कलाम सुनते रहे, और उस कलाम के थ्रू खुदा ने उन्हें समझाया कि सारे के सारा जलाल जो है वो मुझे मिलना है और मेरे बेटे को मिलना है। इस साल हमें, इस साल नहीं, हर साल, हर दिन, हर पल हमें सारा के सारा जलाल यीशु को देना है, क्योंकि वही आसमानों को छोड़कर हमारे दरमियान आया। लिखा है यूहन्ना की इंजील में ही 3 बाब में कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और ईमानदार के लिए हर रोज क्रिसमस है, उसकी ईद हर रोज है। सो सिस्टर एंड ब्रदर्स, आए हम प्रोमो देखते हैं हांडू गुजरा का। अपनी ईदों त्योहारों पर या तो सेंटा क्लॉज को देते हैं, या चरनी को देते हैं, या उसमें लगी हुई सूरतों और मूर्तों को देते हैं।
यीशु मसीह ने हमें आजादी बख्शी है। हर आदम ऊपर जाना चाहता है और दूसरे को काटना चाहता है, मगर ये मोहब्बत हमें यीशु मसीह ने सिखाई कि आपस में बाहम मिलकर रहो। पर्सनैलिटी मेरे और आपके यीशु की, कि जिसके अंदर कोई भी गुनाह नहीं है। यीशु मसीह हकीकी नूर है, जिसने नूर बनकर इस पूरी दुनिया में और रोशनी की। और जब हमारी जिंदगी में ये मुकाशफा आ जाएगा तो हमारे घराने भी बरकत से माला माल हो जाएंगे। मेरी टीम को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि इसी तरह खुदा के दीप और उसके कलाम के चिराग हम दूर दराज इलाकों में उसके पाक नाम को जलाल देते रहें। लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि ब्रिकलैंड्स पर जब मैं गई मांगा मंडी तो वहाँ पर कोई और तालीम की रोशनी तो ना थी, मगर यीशु के जलाल की रोशनी ज़रूर थी और इसके जलाल की रोशनी हमें हर तरफ फैलानी है। थैंक यू सो मच, आई लव यू।